Students, so far in this chapter, we have done properties of trapezium, kite, and parallelogram. Today, students, we start with some other kind of parallelograms like square, rectangle, and rhombus. So let's start. Square. So what is a square? It is a parallelogram whose all the sides are equal and each angle is of 90 degree. So beta, square is a parallelogram, होगा ये parallelogram ही, but here all the sides are equal and each angle is of 90 degree. So let us draw the figure. So this is a square. Here all the sides are equal and each angle is of 90 degree. Now other than this, we have some properties of parallelogram, that is, here in square the diagonals क्या होंगे? This one, diagonals are equal and bisects each other at 90 degree. तो students, what does this mean? जैसे कि मान लो this is a parallelogram, तो अगर हम this is a diagonal, this is a diagonal, so in parallelogram ABCD ये diagonals की length equal होगी, that is in square ABCD AC is equal to BD, diagonal equal है, and these are also bisecting each other at 90 degree. दूसरा क्या बोला मैंने कि AC जो है perpendicular to BD होगा. Moreover, if these intersect at point P, then AP is equal to PC होगा and BP is equal to PD. Understand, students? So this is about square. Now next one is rectangle. So students, what is a rectangle? It is again a parallelogram. It is a parallelogram whose each angle is of 90 degree. स्क्वायर के सभी साइड इक्वल थे, बट इसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, लेकिन हर एक एंगल 90 का होगा. लेट अस look at this figure. Now in this figure ABCD is what? It is a rectangle. और इसमें क्या होगा? Each angle is of 90 degree. ये पैरेललोग्राम है, इसका हर एक एंगल 90 का, इसलिए क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसमें इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा? एक तो ये होगा कि इसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी, जैसे कि स्क्वायर में था. इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे जस्ट लाइक इन स्क्वायर, बट स्क्वायर में दे आर परपेंडिकुलर, बट हेयर डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर. तो स्टूडेंट्स, इन रेक्टेंगल diagonals are of equal length and are bisecting
ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. दैट इज here we can say that AC is equal to BD, and if we write this as P, then AP equals to PC and BP is equal to PD. तो बेटा याद रखना कि this is having all the properties of square. Now next one is rhombus. So what is a rhombus? Again it is a parallelogram. So it is a parallelogram जहां पर क्या होगा, whose all the sides are equal. ये वो पैरेललोग्राम है जिसमें सभी साइड्स इक्वल है. देखो बेटा, इन सब में आपस में रिलेशन है. स्क्वायर में क्या था, सभी साइड भी इक्वल थी और हर एक एंगल 90 का था. इसमें हर एक एंगल 90 का है, सभी साइड इक्वल नहीं है. इसमें सभी एंगल 90 के नहीं है बट हर एक साइड इक्वल है. सो यू कैन से इन rhombus diagonals are perpendicular bisector to each other. Just like if I draw the figure like this is a rhombus, A B C D is a rhombus. Now इसमें क्या होगा बेटा, इसमें इसके जो होंगे डायगोनल्स, these diagonals are bisecting each other and are perpendicular to each other at center. So you can say, अगर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी क्या आएगी इसमें कि in rhombus A B C D, इसमें क्या होगा बेटा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे बट दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. मतलब AP इज इक्वल टू PC, ये इसके इक्वल हो गया. BP इज इक्वल टू PD, ये इसके इक्वल हो गया. एंड AC इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स दे मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर. AC is perpendicular to BD. So students, just go through these definition and properties and get ready for the exercise. Question number 1, true and false. First part, all rectangles are square. अब बेटा हमको पता है कि रेक्टेंगल्स के सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो इट मीन्स all the rectangles are not square. So it is false. B part, all rhombuses are parallelograms. अब बेटा देखो, rhombus क्या होते हैं, अभी हमने डेफिनेशन की थी कि rhombus के सभी साइड्स इक्वल होंगे, तो वो पैरेललोग्राम तो होता ही है. So yes, it is a parallelogram. C, all squares are rhombuses and also a rectangle. बेटा एक चीज याद रखना, स्क्वायर इज अ फादर ऑफ ऑल द क्वाड्रेटर्स. तो मतलब स्क्वायर में हर एक प्रॉपर्टीज होंगी. सो वी कैन से यस, ऑल द स्क्वायर्स आर rhombuses as well as rectangle. D part, all the squares are not parallelograms. So बेटा स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होंगे ही होंगे, बिकॉज बेटा याद रखना स्क्वायर के लिए आपने ब्लाइंडली यस कर देना है, बिकॉज स्क्वायर में हर एक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी होगी. ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, नो, इट इज फॉल्स. बिकॉज हमने क्या बोला था बेटा, काइट में क्या था, उसके सभी साइड इक्वल नहीं थी, जबकि रोम्बस में होती हैं, इसलिए इट इज फॉल्स. एफ, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. यस, इट इज ट्रू, बिकॉज रोम्बसेस को हम काइट
बोल सकते हैं बिकॉज इट इज हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट. ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. यस, इट्स ट्रू. बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या था बेटा कि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, और ट्रेपेजियम में एक ही साइड पैरेलल थी, तो मीन्स इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. यस. अब बेटा जब स्क्वायर आया था, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब पूछा है किसी स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर तो हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. आइडेंटिफाई ऑल द quadrilaterals that have 4 sides of equal length. 4 sides of equal length. तो बेटा हमने अभी तक पढ़ा था ऐसे कितने quadrilaterals हैं जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. तो देखिए बेटा, सबसे पहले स्क्वायर. मैंने तो कहा था स्क्वायर में हर एक प्रॉपर्टी है. स्क्वायर की सभी साइड इक्वल है. और कौन सा होता है बेटा? अदर इज रोम्बस. वी हैव जस्ट डन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस दैट इन बोथ दिस ऑल द साइड्स आर इक्वल. देन 4 राइट एंगल्स. 4 राइट एंगल्स. अब देखो बेटा, ऐसे कितने हमने पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल्स जिनके सभी एंगल 90 के होंगे? सो बेटा वो 2 ही हैं. कौन से बेटा? एक तो मैंने तुम्हें कहा स्क्वायर तो है ही है हर एक में, और इसके बाद हमने एक रेक्टेंगल किया था बेटा. रेक्टेंगल के भी सभी एंगल जो थे वो 90 डिग्री के इक्वल आए थे. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड. एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो बेटा पहली बात, क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है वो? बिकॉज इन स्क्वायर इज हैविंग 4 साइड्स. स्क्वायर इज हैविंग 4 साइड्स. तो बेटा जिसकी 4 साइड्स होंगी वो क्वाड्रिलेटरल ही होगा. देन व्हाई हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. अब बेटा व्हाई पैरेललोग्राम? बिकॉज इन स्क्वायर opposite sides are what? Parallel. Opposite sides are parallel. तो इसलिए square is a also parallelogram. Then rhombus. How square is a rhombus? Why is rhombus? Because in square all the sides are equal. In square all the 4 sides are equal. B part. Why it is a rectangle? How square is a rectangle? So why? Because in square each angle is of 90 degree, just like rectangle. That's why I'm telling you कि स्क्वायर में हर एक की प्रॉपर्टी होगी. क्वाड्रिलेटरल भी होगा, वो पैरेललोग्राम भी होगा, वो रोम्बस भी होगा, वो काइट भी होगा, एवरीथिंग. ओके स्टूडेंट्स, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisects each other. सो बेटा पहला कौन सा होगा? एज यू ऑल नो स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. पैरेललोग्राम के भी करते हैं. ठीक है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी करेंगे, रोम्बस के डायगोनल्स भी करेंगे बाइसेक्ट्स, क्योंकि ये सभी क्या है? पैरेललोग्राम्स हैं. जो पैरेललोग्राम होंगे उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट्स पक्का करेंगे. सेकंड पार्ट,
नेम द quadrilateral whose diagonals are perpendicular bisectors of each other. Perpendicular bisectors of each other. तो स्टूडेंट्स जस्ट गो थ्रू द प्रॉपर्टीज. उसमें क्या था बेटा, एक तो स्क्वायर है. एज आई टोल्ड यू, स्क्वायर इज हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरी क्वाड्रिलेटरल. एक स्क्वायर के डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और इसके होते हैं, और होते हैं रोम्बस के. ठीक है. परपेंडिकुलर तो बेटा किसी और के भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक काइट के भी होते हैं परपेंडिकुलर, बट वो बाइसेक्टर नहीं होते. देन थर्ड पार्ट, इक्वल, are equal. So we have to name the quadrilateral whose diagonals are equal. So students, वो आपके दो ही होंगे. पहला तो as usual square and other is rectangle. ठीक है, rectangle. और students एक और होता है, that is isosceles trapezium. सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, दैट ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. बेटा उसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो स्टूडेंट्स पहले आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स होता क्या है. सो बेटा हमने पहले पढ़ा था कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, दैट पॉलीगन्स वेयर नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर. वो पॉलीगन जिसका डायगोनल का कोई भी पोर्शन बाहर ना जाए. सो लेट अस ड्रॉ द रेक्टेंगल. हम बोला गया कि क्या रेक्टेंगल कन्वेक्स है. तो देखिए बेटा, रेक्टेंगल में क्या होता है, इफ वी ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, सो दिस एंड दिस. सो हियर डायगोनल्स, all portion of whole portion of this diagonal lie in the interior, therefore it is also a convex quadrilateral. So since in a rectangle no portion of its diagonals lies in the exterior, in the exterior मतलब बाहर, exterior of it, thus rectangle is a convex quadrilateral. I hope you understand students. बेटा जो रेक्टेंगल है इसके डायगोनल्स का सारा पोर्शन अंदर ही आ रहा है, बाहर तो जा नहीं रहा है. देयरफॉर इट इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल.